is container, what is algorithm, what is iterator. Okay, what are the two types of container? That is STL container, sequence container, and associative container. Screen is not visible. We studied what is the difference between array and vector. Yes, anyone from the meeting can tell me what is the difference between array and vector? Yes, Vipul. Ma'am, array size is fixed. Vector can provide memory flexibility. Yes, array is fixed. There is no flexibility to grow or shrink during execution. But vector can provide memory flexibility और उसका साइज डबल ग्रो होता है. जो कल हमने प्रोग्राम देखा था उसमें कैपेसिटी नाम का एक फंक्शन यूज किया था. यूजिंग कैपेसिटी फंक्शन वी कैन सी द कैपेसिटी ऑफ वेक्टर. कितना साइज कितना मेमोरी की कैपेसिटी है उसकी. पहले 0 था, फिर 1, देन 2, देन 4, देन 8, देन 16, देन 32, लाइक दिस डबल होते जा रहा है. ठीक है. Screen is visible or not? Okay, there is network problem in college. That's why. Screen is not visible now. Okay, Ritesh, are you there? Ritesh, Ritesh Mohite. कॉलेज का नेटवर्क का इशू हो गया है, अभी पीपीटी में शो नहीं कर सकती हूँ. दैट्स व्हाई थोड़ा वेट करेंगे. यस रितेश, आर यू देयर? आदित्य. Yes, ma'am. Yes, what is template? What is the use of template? Ma'am, template is a blueprint of class. Okay, templates are, we are using templates for generic programming. Generic programming means for all kind of data type, integer, character, float. Okay. What are the two types of template? Yes, participants. Anjali Warkar. What are the two types of templates? Amay Thaide. What are the two types of templates? Yes, function template and class template.
लाइट मतलब कनेक्शन, लाइट और कनेक्शन चालू हो गया है. So yesterday we studied some vector class functions. Size क्या show करता है? It provide the number of element currently in the vector. Then push back, append an element to the end of vector. Pop back, erase the last element. Pop करना means remove करना. Okay. So these are the this information is regarding the vector. Then iterators, we studied iterator, how to use iterator. Iterators are like pointer. तो हमें क्या करना पड़ता है? वेक्टर, फिर उसका डेटा टाइप इंट, डबल कोलन, देन इटरेटर कीवर्ड एंड देन इट्स नेम, IT या फिर P1 P2 या कुछ भी दे सकते हो. देन यू हैव टू राइट दैट ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर एंड देन बिगिन. अगर हमें स्टार्टिंग से कुछ डिस्प्ले करना है तो डॉट बिगिन ये फंक्शन देना पड़ता है. ओके. तो लिस्ट का जो प्रोग्राम किया था उसमें हमने इटरेटर यूज किया है. दिस इज ऑल्सो वेक्टर. सो लिस्ट यहाँ पे 16 के बाद 32 होना चाहिए. लिस्ट भी हम लोगों ने स्टडी किया है. व्हाट इज लिस्ट? लिस्ट क्लास सपोर्ट्स अ बाय डायरेक्शनल लीनियर लिस्ट. इस लिस्ट में हम फ्रंट से भी इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट और एंड से भी इंसर्ट कर सकते हैं. Like that, there is another container, sequence container, that is DQ. DQ is called double-ended queue. It is a queue-like linear data structure. DQ supports insertion and deletion of atoms at both ends. Okay, so you can insert and delete the atom from front side and then from the back side also. We can insert element and delete element from back also. Okay. So what are the functions of DQ class? Same functions are there. Size function to know the current size of DQ, then push back, push front, pop back, pop front. तो यही आपको यूज करना है प्रोग्राम में, रेडीमेड फंक्शंस. Then front, back and clear. So this is one of the example using DQ. तो अगर हम लोग DQ यूज कर रहे हैं तो हेडर फाइल में भी DQ आपको इंसर्ट करना पड़ेगा. DQ हेडर फाइल देनी पड़ेगी. So like vector and list, we have to use DQ keyword, then its data type and then its object. Okay, तो ये एक प्रोग्राम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इंसर्ट एलिमेंट एट द एंड, insert element at the front, delete element at the end, delete element at the front, then front element, which is the front element now or current situation at DQ, and which is the last element at the current moment, at this moment in DQ. Then size of DQ. अभी मैं ये प्रोग्राम टाइप नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी. सो ये इटरेटर है हमारा IT, दैट इज द पॉइंटर. चॉइस, हमें कौन सा चॉइस चाहिए, कौन सा एक्शन करना है, आपको इंसर्ट करना है. सो दिस इज द स्विच केस. देन इन स्विच केस, choice 1, enter value to be inserted at the end. तो उसके लिए क्या फंक्शन होगा? DQ डॉट पुश बैक. वो जो एटम होगा, जो भी एलिमेंट होगा, वो हम एंटर करने वाले हैं एट द एंड. सो DQ डॉट पुश बैक फंक्शन फॉर दैट.
और केस 2, एंटर वैल्यू टू बी इंसर्टेड एट द फ्रंट। फ्रंट से मुझे इंसर्ट करना है तो पुश अंडरस्कोर फ्रंट। पुश अंडरस्कोर फ्रंट ये मैं यूज करूंगी फंक्शन। तीसरा क्या है कि पॉप बैक करना है, डिलीट करना है एलिमेंट। सो dq डॉट पॉप बैक फंक्शन यूज करूंगी तो डिलीटेड एलिमेंट भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। So this is a program, simple program. ये मैं आपको शेयर करूंगी. You have to just type it and check the execution. Size of dq. Case 7. There is a size of dq. तो सिंपल फंक्शन है dq डॉट साइज. dq हमारा dq का ऑब्जेक्ट है. With dot operator we are using the size function. एलिमेंट्स ऑफ dq. अगर मुझे एलिमेंट्स चेक करने हैं dq में कितने हैं तो उसके लिए क्या कोडिंग होगा. इफ नॉट इक्वल टू dq empty. अगर अपना dq empty है तो एलिमेंट शो नहीं होंगे. अगर नॉट empty है तो एलिमेंट शो होंगे. सो सी आउट एलिमेंट्स ऑफ dq. फॉर लूप लगेगा एक 1 by 1 हम डिस्प्ले करने वाले हैं इसलिए फॉर लूप it इज इक्वल टू dq डॉट बिगिन. मुझे स्टार्टिंग से एलिमेंट डिस्प्ले करना है. सो बिगिन it नॉट इक्वल टू dq डॉट एंड. जब तक एंड नहीं आता तब तक ये कंटिन्यू रहेगा. एंड it प्लस प्लस. तो ये 1 by 1 डिस्प्ले हो जाएंगे. डिस्प्ले के लिए क्या स्टेटमेंट है हमारा सी आउट. तो सी आउट में हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, पॉइंटर का वैल्यू. सो स्टार it, नॉट ओनली it. स्टार it मीन्स वैल्यू एट दिस पॉइंटर. कौन सा वैल्यू है मतलब जो एलिमेंट्स है वो. ब्रेक देन एग्जिट एंड देन चॉइस. अगर रॉन्ग दिया है तो रॉन्ग चॉइस ऐसे प्रिंट होना चाहिए. तो ये प्रोग्राम भी है. द dq इज 15 20 10 मैंने इंसर्ट किया. अगर dq का साइज मैं देख रही हूं तो 4 आता है. dq एट सेकेंड पोजीशन, तो सेकेंड पोजीशन पे 10 है dq के. दिस इज द जीरो, दिस इज द 1th पोजीशन एंड दिस इज द सेकेंड पोजीशन. तो फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है, बैक पे कौन सा एलिमेंट है. dq पॉप फ्रंट. फ्रंट dq डॉट पॉप फ्रंट. तो फ्रंट से एक एलिमेंट पॉप हो जाएगा मीन्स रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ पे 15 रिमूव होगा इसलिए 20 10 30. पॉप बैक. नाउ नेक्स्ट कंटेनर टाइप इज एसोसिएटिव कंटेनर. नेक्स्ट कंटेनर टाइप इज एसोसिएटिव कंटेनर. तो एसोसिएटिव कंटेनर कौन से हैं. सेट, मल्टी सेट, मैप एंड मल्टी मैप. सीक्वेंस कंटेनर लिस्ट, dq, then vector, list, etc. What is set? Sets are a type of associative container in which each element has to be unique. तो हमें सेट का प्रॉपर्टी पता ही है. सेट में हम डबल वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते. यूनिक वैल्यू होता है. अगर मेरा सेट 1 2 3 है तो मैं उसमें और 3 और 1 इंसर्ट नहीं कर सकती. So because the value of the element identifies it, the value of the element cannot be modified once it is added to the set. Through it is possible to remove and add the modified value of that element. And in set, the value of element itself, the key of type T. We will see the example of this. Internally, the element in a set are always sorted. There are two types of set, sorted set and unsorted set. तो sorted set में specific strict weak ordering criteria indicated by its internal comparison object.
and sets are typically implemented as a binary search tree. Okay, binary search tree. These are the useful functions we can apply on set class. Same functions, सभी containers के function थोड़े बहुत same ही है. Begin, end, size, which is the maximum size, then clear, empty function, erase function, find function, count function and clear function. तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि मैप का ही मैं सिर्फ एग्जांपल प्रोग्रामिंग थ्रू लेने वाली हूँ और अभी ये ऐसे ही आपको डिस्प्ले करूंगी, इसका मैं प्रोग्राम नहीं लेने वाली हूँ. तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. 6th यूनिट. हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एज इट इज, हैश इंक्लूड सेट हेडर फाइल अभी आपको देना पड़ेगा. व्हेन यू आर यूजिंग set container, then header file set, then main function. तो set का डिक्लेरेशन भी वेक्टर जैसा ही है. set कीवर्ड लिखना पड़ता है, then एंगुलर ब्रैकेट में इंटीजर है या क्या है, then its ऑब्जेक्ट. अगर मुझे इंसर्ट करने हैं एलिमेंट्स इन सेट तो मैं क्या करूंगी, फॉर लूप यूज करूंगी. फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, मतलब मुझे 10 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, और i प्लस प्लस. सो s डॉट इंसर्ट फंक्शन में लेने वाली. तो ये 10th पोजीशन पे 10 माइनस आई, 10 मीन्स 10 माइनस आई मीन्स 10 माइनस 0. सो 10th पोजीशन पे ये इंसर्ट होगा एलिमेंट. ओके, दिस इज टू इंसर्ट द एलिमेंट्स इनटू द सेट, and this coding is to display the element whatever we insert in set. तो सेम कोडिंग है ये. आपको लाइंस याद रखने हैं, मतलब थोड़ा सा इंसर्ट करने के लिए फॉर लूप और डिस्प्ले करने के लिए ये फॉर लूप. तो डिस्प्ले में हमें इटरेटर यूज करना पड़ता है, कोलन कोलन इटरेटर. आईटी एक नेम है इटरेटर का. देन एस डॉट बिगिन एंड एस डॉट एंड तक हमें डिस्प्ले करना है, पूरे के पूरे डिस्प्ले करने हैं. तो एंड डिस्प्ले करने के लिए ये स्टेटमेंट सी आउट. ओके, तो ऐसे ये डिस्प्ले हो जाएगी जो भी इंसर्ट किए हुए हैं एलिमेंट्स वो. नाउ मैप is also the associative container. Maps are associative containers that store elements formed by a combination of key value and mapped value. Okay, key value and mapped value. Following a specific order. In a map, the key values are generally used to sort and uniquely identify the elements, while the map values store the content associated to this key. तो मैप में की एंड वैल्यू पेयर स्टोर होता है. The types of key and mapped value may differ and are grouped together. Okay, थियरी ज्यादा ये लेने वाली है, ठीक है. Maps are typically implemented as a binary search trees. तो बेसिकली वेक्टर लिस्ट और क्या रहता है अपना DQ, इसमें हम सिक्वेंशियली आइटम स्टोर करते हैं. मतलब